welcome to my channel Seeker's Diary. Today I'm going to introduce you to a very special organization called Shiv Ganga. Earlier this year, my parents had visited Jhabua, which is a region in the central part of India, in the state of Madhya Pradesh. They attended an event, which was a very unique event. In this event, every year, thousands of tribal men, women, and children come together and dig trenches to conserve rainwater and plant thousands of trees. Through this event, they have been able to change the landscape of Jhabua. They have created thousands of water bodies of different types. They have grown hundreds of thousands of trees in Jhabua. They no longer face the scarcity of water for agriculture, and they no longer have to go to cities in search of work. They have started organic farming. They sell their produce in cities. They make products of bamboo, which has now reached international markets. They have improved the nutrition and health in their villages. Every year, many students from premier engineering colleges like IITs visit them, live with them, and learn how they are doing this development work in a sustainable way and in a self-reliant way. And they leave inspired. How have they been able to achieve all this? Come, let's find out. So today we have a very special guest with us. We have Shri Mahesh Sharma ji. Before we begin, let me introduce you a little bit about his background. Shri Mahesh Sharma ji is the founder member of Shiv Ganga, and he's been working with tribal people in Jhabua Alirajpur region of Madhya Pradesh, India since last 20 years. Originally from Datia district of Madhya Pradesh, Shri Mahesh ji started in social work as a teenager. After working for Rashtriya Swayamsevak Sangh for 18 years in the education and development of tribal areas, he established the Shiv Ganga Samagra Gram Vikasi in Jhabua in 2005. And since then, he's been working on several fronts of holistic rural development. And he was awarded by the Government of India as a Padma Shri in 2019. So, महेश जी आपको हमारा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पे. तो आपको भी मेरा प्रणाम, नमस्ते जी. तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये शिव गंगा अभियान क्या है और इसमें आप किन एक्टिविटीज पे आप फोकस करते हैं. शिव गंगा अभियान ये समग्र ग्राम विकास के लिए एक संचालित किया हुआ अभियान है. झाबुआ में वनांचल अर्थात कभी घने जंगल थे और वो करीब 150 साल पहले सभी कट गए, टूट गए, उजड़ गए और उसके कारण सारा मौसम संतुलन बिगड़ गया. वर्षा कभी अधिक कभी कम होने लगी और यहाँ का मुख्य आधार जंगल थे. तो जंगलों के विनाश होने से यहाँ का जो जनजीवन था वो अत्यंत दूभर होने लगा. नदियां बहती थी वो भी अनियमित होने लगी. तो इन सब अभावों को देखा, ग्रामवासियों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गांव की समृद्धि के लिए गांव के दुखों को मिटाना पड़ेगा. और जब हम गांव की दुखों की चर्चा कर रहे थे तो अनेक प्रकार के दुख आए, जिसमें शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी और भी वहाँ के जनजीवन में अनेक प्रकार की असुविधाएं थी. पर इन सब की असुविधाओं का मूल कारण था कि खेत में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल हो. वार्षिक रूप से वर्षा आधारित फसल थी और वर्षा भी अनियमित थी. तो ऐसा निश्चित किया कि यदि हम अपने गांव के अंदर जल संग्रह कर लें जिससे 2 फसल होने लगेगी.
और 2 फसल होने से जो यहाँ बड़ी मात्रा में मजदूरी करने के लिए जो मजबूरी बन जाती थी वर्ष भर का खर्च चलाने के लिए, तो शिव गंगा के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से बातचीत करके जल अभियान शुरू किया। और इस जल अभियान में ग्रामीण लोगों को जो छोटी छोटी बातें काम करते करते आ गई थी, पानी रोकने की, तालाब बनाने की, स्टॉप डैम बनाने की, उसकी कुछ तकनीकी बातें, इंदौर का एक GSITS बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान है, उनके प्रोफेसर, उनके डायरेक्टर, उन्होंने मिल करके, और शिवगंगा के जो संस्थापक हैं माननीय हरजी चौहान, वो उस के स्टूडेंट हैं GSITS के, IIT के भी हैं, तो उन्होंने इस तरह का विचार किया कि इन ग्रामीणों को मदद की जाए और जल रोकने, जी हाँ, तो इस तरह से ये जो शिवगंगा अभियान है, इसका प्रारंभ यहाँ से हुआ कि गांव की जो दुख है, एक तो व्यक्ति का दुख होता है और एक गांव का दुख होता है, तो हमने व्यक्तियों के दुख का मूल गांव का दुख और गांव के दुख का मूल जल का अभाव, और जल के अभाव से जंगलों का सूखना, नदियों का सूखना और विवशता, मनुष्य के जीवन में मजदूरी आ गई कि वर्ष भर जीवन चालन कैसे चले, 1 वर्ष तक जीवनचर्या कैसे हो, जीविकोपार्जन कैसे हो। तो यहाँ से बड़ी लाखों की संख्या में मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जाते। तो ऐसा एक अभियान शुरू किया कि हम अपने गांव के एक एक करके सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम गांव के सभी लोग वो स्किल, वो योग्यता, वो कौशल सीखें जिससे गांव के दुखों को दूर किया जा सके। तो शिव गंगा अभियान समग्र ग्राम विकास के लिए संवर्धन से समृद्धि का अभियान। संवर्धन अर्थात जल का संवर्धन, जमीन का संवर्धन, जल का संवर्धन, वहां घर घर में रहने वाले जो पशु हैं वो दुधारू बने, वो बलिष्ठ रहे, वो निरोगी रहे, इसलिए जानवरों का संवर्धन, और वहां के रहने वाले जो मनुष्य हैं, बचपन से लेके पुरुष, महिला, बच्चे, उनमें समझबूझ, मिलकर के काम करना, आधुनिक ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना, इसलिए जन संवर्धन और नई टेक्नोलॉजी जो गांव में पहुंच गई है, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के विविध माध्यमों से जो गांव को सुगम हो जाना चाहिए, इसलिए नए विज्ञान का संवर्धन। तो ऐसे 6 आयाम, जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर और नव विज्ञान के संवर्धन से गांव की समृद्धि लाना, ये शिव गंगा अभियान है। बहुत ही सुंदर मुझे इसका कॉन्सेप्ट लगा कि एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि सारे एस्पेक्ट्स आपने गांव के कवर कर लिए, कि एक गांव को समृद्ध बनाने के लिए या वहां पे खुशियां लाने के लिए जो जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसमें कितने बड़े एरिया को आप लोग अभी इंक्लूड करते हैं, या कितने गांव आप लोगों ने टच किए हैं अभी तक? जब हमने इसे प्रारंभ किया था तो 1998 में मैं झाबुआ आया था, वनवासी कल्याण परिषद में, वो मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था थी और उसका अखिल भारतीय संबंध भी था जनजाति क्षेत्र में, और उसके निमित्त जब मैं 98 में आया और वहां से लेकर के मैं बहुत वर्षों तक यहाँ रहा, तो हमारे जो संस्थापक और अध्यक्ष थे माननीय हरजी चौहान, वो जनजाति क्षेत्र के ही होने के कारण से उन्होंने ये बात मुझे बताई कि यहाँ का जो समाज है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे समझा जाए, उसके आधार पर काम किया जाए। तो ये काम हमने शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर, इससे संवर्धन से समृद्धि का एक नया अभ्यास, जिसमें 2 जिले, उस समय 1 जिला था केवल झाबुआ जिला, फिर वो 2008 में 2 जिले बन गए। तो हमने बहुत अधिक फैलने का संकल्प नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 87% जनजाति समाज रहता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भील समाज है जो पूरी जनजाति समाज का काफी बड़ा भाग है। 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भीलों की है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है।
तो उसका ये सेंटर पॉइंट बन जाता है झाबुआ। तो हमने ये सोचा कि जड़ को सींचने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो झाबुआ जिले के आसपास 2 करोड़ जनजाति समाज रहता है, तो हम इसी में रह करके ऐसा वातावरण बनाएंगे कि आसपास के जो जिले हैं, जो यहाँ से बस मैक्सिमम दूरी उनकी 150 या 300 किलोमीटर का हम घेरा बनाते हैं, तो उस एरिया में ही ये सब कुछ आ जाता है, बल्कि 150 में ही आ जाता है। यदि झाबुआ को सेंटर, तो 2 जिलों को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया, और 2 जिलों में ही 1320 गांव हैं। ये एक गांव राज्यपाल द्वारा जो ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी की जाती है, उससे हमने ये आंकड़ा लिया, क्योंकि ग्राम पंचायतों के बनाने के लिए राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन जो घोषणा करता है कि कितने गांव होंगे, तो 1320 गांव हैं। इन 300 इतने गांव में से हम 700 गांव में, ये 700 गांव में कैसा संपर्क है कि हम एक 4-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को, जो 18 से 35 साल की आयु वर्ग के हैं। तो उस 4 दिन की ट्रेनिंग में हम ये बतलाते हैं कि अपना गांव क्या है, गांव की सामर्थ्य क्या है, गांव का भूगोल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर का है, इस एरिया में पानी कितना गिरता है, इसमें हम जंगल कितना खड़ा कर सकते हैं, इसमें पशुओं को हम कितना विकसित कर सकते हैं। हमारे युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहीं के यहीं कितने लड़के स्वावलंबी बन सकते हैं, और अपनी प्राचीन परंपराओं में ऐसी कितनी बातें हैं जो आज उनको और अधिक बढ़ाया जा सकता है, ऐसी क्या बात है जो कुरीतियां जिसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो 2 जिलों में ऐसी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो 12,000 तक ट्रेनिंग, अब तो हमारी ये संख्या बढ़ती जा रही लगातार। अब हम 4 दिन की ट्रेनिंग की जगह अब इसे 7 दिन की भी देते हैं, 15 दिन की भी देते हैं, और इस स्किल डेवलपमेंट के अंदर उनके घर में रह करके वो स्वरोजगार कर सकें, जिसमें बाम्बू एक बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश शासन ने बाम्बू का बड़ा प्रकल्प चलाया था गांव-गांव में बांस, लेकिन उसका कोई स्किल नहीं था, तो बहुत अधिक इमारती कोई बहुउपयोगी सामान नहीं बना पाते थे। रोजमर्रा के लिए जो टोपलियां बनती हैं, बांस की छोटी-छोटी टोकरी बनती हैं, तो लेकिन हमने सोचा इंटरनेशनल लेवल के बांस उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, तो हमने उसको शुरू किया। और उसमें मैं आपको एक बड़ी गर्व के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष 14 लड़कों ने ऑनलाइन 5 लाख रुपए के बाम्बू के 2 प्रोडक्ट, एक बाम्बू एम्पलीफायर, उसको बिक्री शुरू की, और उसमें 26 प्रदेशों में ऑनलाइन उसकी मांग हुई। उसको यहाँ से कुरियर के द्वारा भेजा गया, 18% जीएसटी के माध्यम से 90,000 जीएसटी जमा हुई, और इतनी ही कुरियर का खर्चा आया, और 490 का एक प्रोडक्ट था, वो इतनी बिक्री हुई। उससे ये कॉन्फिडेंस आया कि बांस का, भले ही हमने 14 लड़के शुरुआत की है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग लेते समय बहुत लोग शामिल हो गए। फिर कृषि के लिए, किसानों के लिए जैविक भूमि हो और उनको मार्केट नहीं मिलती, तो यहाँ पर आईआईटी के जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ आया करते हैं, उसमें एक विद्यार्थी सत्यजीत पटेल, उन्होंने मार्केट में कैसे सही पहुंचना, किसानों को गृह उपयोगी सामान कैसे करना, ग्रेडेशन के, इसकी ट्रेनिंग देना शुरू की, और इंदौर में उसको सेंटर बनाया बिक्री का। तो ग्रामीण लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया। शुरुआती दौर में सिर्फ 22 लोग जुड़े थे, और उस गांव में बढ़ते बढ़ते अब वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अच्छी सब्जियां, अच्छी दाल, अच्छी जो बिल्कुल प्राकृतिक निरोगी बनने वाली, ये हमने शुरू की। तो किसान आधारित जो उसका उत्पादन है, उसका फैलाव शुरू हुआ। फिर हमको ये ध्यान में आया कि झाबुआ की जो नेटिव इंटेलिजेंसी है और एक व्यक्ति की जो योग्यता है, तो हमने ऐसा, किसी को ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है कि शहर में रहने वाले 18 साल का लड़का और झाबुआ अलीराजपुर जिले का 12 साल के लड़के की जो योग्यता है वो समान है, यानी समझ वो जो 12 साल के लड़के में होती है और जो कार्य क्षमता रहती है। तो हमने ट्रेनिंग के लिए 12-14 साल के लड़कों को भर्ती करना शुरू किया, और उसके माध्यम से जब कार्य शुरू हुआ और वे लड़के लगातार 4 साल 5 साल तक आते गए, यानी 14 साल का लड़का 18 साल का हुआ, तो उसमें अपने गांव को समृद्ध करने के लिए जल
रोकने के लिए उसने 10 साल का नक्शा बनाया। जंगल लगाने के लिए पेड़ पौधे में वातावरण ऐसा बना कि स्वच्छ गांव और स्वस्थ परिवार। तो महिलाओं की लीडरशिप में उस सशक्तिकरण वर्ग के माध्यम से हर घर के अंदर, अभी हमारा घर यहाँ 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन हमने कुछ घरों में हर साल 400 घरों में 500 घरों में हम 10-10 पौधे देते हैं, जिस पौधे का संबंध कुपोषण दूर करता है। फलदार पौधे हैं जो साल भर हर मौसम के फल है, जैसे पपीता वर्ष भर फलता है, जामफल सर्दियों में फलता है, आम गर्मियों में फलता है, बिल्व फल ऐसा है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सब्जी भाजी में डालने के लिए नींबू, या ऐसा मीठा पत्ता जो आयुर्वेदिक औषधि है, शरीर के अंदर पानी से संबंधित रोगों को खत्म करता है। आंवला दिया हमने, सुरजना की फली वाला पौधा दिया, जो आधुनिक काल में बताए जाते हैं कि जिसमें विटामिन ज्यादा है। तो घर घर में 10-10 पेड़ लगाए, और उसके कारण महिलाओं की लीडरशिप बढ़ी, और महिलाएं वो पेड़ आती हैं, लगाने का प्रशिक्षण लेती हैं और गांव में जाती हैं, और गांव में पूरा गांव स्वच्छ रहे, क्योंकि गांव में बीमारी पनपती है और घर में आके वो बीमारी का रूप लेती है। तो इस तरह से शिवगंगा अभियान का जो प्रशिक्षण कार्य चालू किया, उसका व्यवहारिक रूप ये हुआ कि उसका परिवर्तन घरों में दिखाई देने लगा। तो ऐसे 2 जिलों में शिवगंगा का ये कार्य क्षेत्र। तो इससे तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है। मतलब इसमें एक तरह से फाइनेंशियली जो दिक्कतें लोग फेस कर रहे थे वो भी रिजॉल्व होती हैं, जो मतलब हेल्थ की जो समस्याएं गांव के अंदर होती है वो भी रिजॉल्व होती है। इसके अलावा जो गांव से पलायन हो रहा है शहरों में, वो भी एक तरह से रुकता है, और अपने ही जगह पे लोग रोजगार ढूंढते हैं और खुशहाली गांव के अंदर आती है। तो ये बहुत बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कार्य। इसमें एक चीज मैं आपके वेबसाइट पे मैं पढ़ रही थी हलमा के बारे में। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि हलमा पुराने जमाने में शायद ऐसा कुछ होता था कि किसी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ आती थी और वो खुद उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता था, तो वो सब आसपास के लोगों से मदद मांगता था और सब आके उसकी मदद करते थे उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने आपकी वेबसाइट पे पढ़ा था, तो ये भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हलमा क्या है और आप इसको किस तरह से अपने कामों के लिए उपयोग में लाते हैं। वही बात है कि कोई भी गांव का व्यक्ति संकट में आ गया, स्वेच्छा से नहीं आता संकट आकस्मिक आता, और उस आकस्मिक संकट में गांव में ऐसी परंपरा थी कि उसको उबार लेना, और ये हमारे पूरे भारत में अनेक नामों से है, पर झाबुआ और अलीराजपुर ये दोनों जिलों में इनके सभी गांव में ये परंपरा जीवित जागृत रूप में थी, पर धीरे धीरे इसको क्षरण हो रहा था। इसको कोई मजदूरी से जोड़ रहा था, कोई पैसे बचाने से जोड़ रहा था, लेकिन जब यहाँ के बुजुर्गों से पता लगा कि ये ना तो मिलजुल के काम करके पैसे बचाने के लिए है, ना ही समय बचाने के लिए है, ये वस्तुतः संकट ग्रसित आकस्मिक अनागत कारणों से जो संकट आ जाए उससे सामूहिक जीवन से उबारना, और उबार करके उसे फिर से समकक्ष खड़ा कर देना, उसके जीवन की नैराश्य समाप्त कर देना। तो जब ये बात गांव में व्यक्तियों के स्तर पर होती थी, पूरा गांव एक परिवार को सहायता करता था, तो ऐसे हमारे भ्रमण करते करते हमने उन्हीं बुजुर्गों से, उन्हीं गांव के मुखिया जिन्हें यहाँ तड़वी कहते हैं, यहाँ के वरिष्ठ लोग 60-65 साल के, उनसे बातचीत करने पर हमने ये कहा, क्या इस हलमा को हम जो पूरे जिले में सभी मनुष्यों के जीवन को दूभर कर रहा है, ऐसे जल संकट को दूर करने के लिए, जंगल लगाने के लिए क्या इस हलमा का उपयोग किया जा सकता है। तो आपके कहे अनुसार एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि मुझे इस बात का आनंद हुआ कि गांव के सभी लोगों ने मुझे कहा कि क्यों नहीं, हम यदि गांव का दुख दूर है तो हम उसे दूर कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही समस्या आई जिसमें शिव गंगा को श्रेय जाता है, अर्थात हमारे सारे जो कार्यकर्ता प्रशिक्षित हैं उनको श्रेय जाता है। वो क्या किया हमने कि जब हम बातचीत करते थे गांव में जाकर के 10 परिवारों में 20 परिवारों में, तो अमूमन सभी लोग ये बोलते थे कि हम आ जाएंगे पर दूसरे नहीं आएंगे।
गांव के दुख के लिए। हम दूसरे गांव के दुख को दूर करने के लिए भी जा सकते हैं, पर हम आ जाएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो उस बातचीत को मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता था कि 2000 व्यक्तियों के घर में गया, तो 2000 व्यक्ति ये इस बात का कमिटमेंट कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं आ जाऊंगा, पर दूसरे नहीं आएंगे। तो मुझे तो पता लग रहा था कि 2000 आने के लिए तैयार है। तो इकट्ठे आने पर इनमें भी परस्पर विश्वास पैदा हो जाएगा। तो हमने गांव में हलमा करने की जगह जिले में हलमा करना। और झाबुआ जिले के अंदर एक 9 वर्ग किलोमीटर की वन विभाग की पहाड़ी है, वो बहुत अच्छी है। शहर के पास हमने वन विभाग से बात की और उन्होंने हमको इसकी अनुमति दी, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, समाज में भी अन्य लोगों को नहीं था, ग्रामीण लोगों को भी आपस में नहीं था। तो शिवगंगा ने जो टूटे हुए विश्वास को फिर से जागृत किया, और सभी जब लोग आए, 2000 के निमंत्रण पर करीब 1200 युवक, महिला, पुरुष, बच्चे, क्योंकि ये हलमा का गुण था कि उसमें सभी लोग भागीदार थे। अपने साथ में साधन लेकर के आते थे, अपने साथ भोजन लेकर आते थे, अपने साधनों से आना, ये तो एक प्रकार से इस समय में चौंकाने वाली बात है, पर इस समाज में वो थी। उसको हमने जागृत नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया कि विश्वास भी होना चाहिए परस्पर, दो अच्छे व्यक्तियों में विश्वास होना चाहिए, दो समाजों में विश्वास होना चाहिए। तो जब हमने झाबुआ जिले में ये काम शुरू किया, तो उनसे मैंने ये बात कही कि देखिए, आप अपने को अच्छा मानते और दूसरे को भरोसा नहीं करते। तो उन्होंने इस बात को, मेरी बात को अप्रिशिएट किया, और सालों साल तक ये जब हमने जिला केंद्र पर किया, उसका परिणाम ये हुआ कि हमने, अब तो कई बार हो गए कि हमने एक साथ 324 गांव में हलमा किया, वहां भी 100-100, 150 लोग आए, और वहां उन्होंने पानी रोकने के लिए ट्रेंचेस खोले, वहां उन्होंने जंगल लगाने के लिए गड्ढे बनाए, वहां पौधे लगाए, 5-5 साल तक की उनको सुरक्षा दी। तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला दिखा, लेकिन मेरे जैसा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमसे मिलने वाले लोग हैं, जो नेपथ्य में हजारों लोग रहते हैं, जो झाबुआ में नहीं रहते, इंदौर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, जो शिवगंगा की ऐसी बात सुन करके सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, उनको लगा यार ये बहुत अच्छी बात है। तो हलमा यहाँ की भील का मतलब भील, बिलाला, पटेलिया यहाँ के समाज का एक समुच्चय नाम है। भील पुरानी ऐतिहासिक नाम है और गौरवपूर्ण समाज है। तो उसकी इस परंपरा को राजस्थान में हलमा के नाम से ही जाना जाता है, गुजरात के कुछ जिलों में हलमा के नाम से जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका दूसरा नाम है। मध्य प्रदेश के झाबुआ अंचल, अलीराजपुर, बड़वानी, इसमें हलमा ही नाम से जाना जाता है। इसमें कोई कोई इसका दूसरा नाम भी बोल देते हैं, लाश भी बोल देते हैं, ढासिया भी बोल देते हैं, लेकिन भाव एक है। तो हलमा परंपरा लुप्त जैसी हो रही थी, और उसमें एक बात बड़ी ही आ रही थी कि एक होती है पड़जी, ये भी भीली नाम है, पड़जी, अर्थात मैं आपके घर खेत में काम करने आया, तो मैंने 7-8 खेत वालों को हल मंगाए, 2-2 जोड़ी बैल आ गए, और एक साथ 10 दिन में खेत जोतने वाले थे 2 दिन में कर दिया। अथवा निदाई गुड़ाई के लिए आए तो 10 परिवार इस घर में आ गए, फिर वो 10 के 10 ऐसे सर्किल बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे। तो वो पड़जी थी, और पड़जी था व्यवहार, यदि मैं आपके यहाँ आया तो आपको मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। लेकिन हलमा ऐसा नहीं था। हलमा में विशुद्ध रूप से आप संकट में, जैसे आप सड़क पे गिर गए तो मैंने आपकी मदद की, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गिर जाऊं तो आप आना, या वो सहायता करने वाला कहे कि आप गिरो तो मैं मदद करने आऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये इसमें विशुद्ध रूप से आकस्मिक दुर्घटना से ग्रसित होके कोई थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं। तो हलमा एक बड़ी परंपरा थी, जिसमें बहुत दूर तक की सोची गई बात थी, जिसको हम आज प्रधानमंत्री फंड बना हुआ है, तो वो आकस्मिक चार्ज के लिए, कोई उसमें मकान बनाने के लिए कहे कि मेरे पास, तो नहीं दिया जाएगा, वो आकस्मिक आपदाओं के लिए, भौतिक प्राकृतिक आपदाओं के लिए। तो हलमा उस समाज ने इतना सोच के रखा हुआ था, वो लुप्त हो रही थी। और इस समाज की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने कहा कि गांव का दुख हो उसमें भी हम आएंगे, दूसरे गांव का दुख हो उसमें भी हम आएंगे, और संपूर्ण अंचल का दुख हो उसमें भी हम आएंगे। अर्थात हलमा
के करने से, अर्थात हमारे श्रम करने से, हमारे सहयोग से समाज का दुख दूर होता है, तो हम उसमें तन मन धन तीनों देने के लिए तैयार हैं। तो ये इसी को हमने कहा धार्मिक भावना। ये धार्मिक भावना है। हमने शिव गंगा को इसी को धर्म कहा कि समाज की समृद्धि के लिए, समाज की खुशहाली के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही वास्तव में धर्म। तो ये हलमा की जो रूपरेखा है, जो आपने भी बताई और मैंने थोड़ा सा यहाँ के बातें उसमें कुछ जोड़ दी जो हमें अनुभव में आई, इस रूप में वो हलमा है। तो इससे और हलमा के माध्यम से केवल पानी नहीं रुका, जंगल भी। अच्छा, तो इसमें सारे लोग इकट्ठे होके, मैंने जो थोड़ा सा आपके वेबसाइट पे पढ़ा था, उसमें ये लोग कहते हैं कि हम जमी माता की सेवा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, राइट? ये इसको एक मदर अर्थ की तरह से उसको कंसिडर करते हैं, और एक माँ को जिस तरह से अपना बच्चा संकट के समय में आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, उस भाव के साथ सभी लोग इकट्ठे होके ये काम करते हैं। तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक चीज और मुझे, हाँ बोलिए। ये एक और बड़ी बात है, याद दिला दी कि हमने जो शिव गंगा नाम दिया, तो ये भी हम बाहर से, लेकिन जल रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार वाटर सेट चलाती थी। उसमें भौतिक कॉन्सेप्ट था कि हम जल रोकेंगे और अपने खेत में अन्न धन पैदा करेंगे। हमारे गांव में ये बात आई कि भारत में प्राचीन समय में गंगा कैसे आई, सूखी धरती को प्यास बुझाने के लिए। भगीरथ की कहानी लोक प्रसिद्ध, भगीरथ नहीं है पर गंगा है। मंदाकिनी हमारे पास है, लेके को लाने की, तालाब लाने की कहानियां हैं, और वो तालाब भी हैं। तो उसमें हो सकता है कि कहानियों में थोड़ा बहुत बदल हुआ हो, लेकिन उन सारी कहानियों का सार ये है कि परमार्थ के लिए किए गए काम को शिव गंगा कहते हैं, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना जीवन खप गया। और वो जो हमने लोक कल्याण के लिए काम किया, उसका नाम शिव माने कल्याणकारी, गंगा माने जो सबको समान समझने वाली, सबको दूर करने वाली, पशु पक्षी, दिखने वाले ना दिखने वाले की प्यास बुझाने वाली। तो ऐसी संस्था का नाम बाद में हुआ। अब अच्छा, दूसरी बात कि ये जो शिव गंगा के साथ जमी माता, मैं एक गांव में गया था, जमीन में अंग्रेजी के शब्द यूज कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, जंगल कट गए। तो वहां पर एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं मेरी धरती माता, मतलब मैं और मेरी धरा एक है, दो अलग अलग नहीं। मैं मेरी पवन देवी, मैं और मेरी हवा, ये एक है। मैं मेरी गगन देवी, मैं और मेरा गगन आकाश। मैं मेरी जलन देवी, मैं और मेरा जल। देवी माने मातृ स्वरूप है। तो मुझे तो सुनकर के इतना आश्चर्य हुआ कि मैं इस चीज की कल्पना अपने जीवन में कहीं नहीं कर पाता था। यद्यपि मैंने वेदों में धरती माता पढ़ा, माता भूमि पुत्रों प्रत्यय, पर भीली शब्द ये थे, मैन मेरी गगन देवी, मैन मेरी अगन देवी, मैन मेरी जलन देवी, मैन मेरी धरती माता है, मैं और मेरी, मैं और मेरी। और इसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते। और झाबुआ में ये परंपराएं अग्नि को बचाने के लिए, गगन को बचाने, ये भी हम इस पर शुरू नहीं किया है, पर हमारे अंदर ध्यान आया कि जो पंच महाभूत तत्व हैं, इसकी परंपरा झाबुआ में है। आकाश में जो प्रदूषण हो रहा है, वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, जल में तो हो ही रहा है, धरती में तो हो ही रहा है, ये सारी चीजों की परंपराएं झाबुआ में विद्यमान है। क्योंकि हमारे पास नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसको सोचने लगे हैं कि हमें पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड को ही सुरक्षित रखें। तो ये इस तरह का नाम आया, इस तरह की जमी माता आई, इस तरह की शिव गंगा नाम। तो हम लोगों की जो रूट्स हैं, हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी ज्यादा इको फ्रेंडली बाय नेचर ही है। मतलब हम लोगों के रूट्स में ही है ये। हम
जो हमारे जो पुरानी ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो पुराने ज़माने के जो थॉट प्रोसेस है हमारे यहाँ की, वो कितनी इको फ्रेंडली है, ये इसी से पता चलता है।